Good morning, students. Welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Myself, Kukaraja Rahul, and we are learning it here for the standard 9 mathematics. Okay, clear? So, in the mathematics, we already seen the chapter 1, first exercise. Okay, in the first exercise, we already seen the particular questions, that is question 1 and question 2 and also question 3. Okay, and I'll also give you the some type of the question in your homework. Okay, I hope all of you are done the homework easily, right? If you have any query or any doubt in the homework or either in the any kind of the sum that I'll teach you in the board, okay, please ask me anytime and please give me a feedback of that. Okay, if you don't ask me any kind of the questions or any kind of the query to me, okay, that means I understood that you have to clear all these things that I'll teach you at here. Okay, मैं आप समझ लूँगा यहाँ पे कि आपको कोई क्वेरी नहीं है और आपको कोई डाउट नहीं है अगर आप पूछोगे नहीं तो. क्लियर? So now at here we are moving on the again some question of that related the previous session. Okay, so chapter 1, that is number system. Okay, and we are already taking the first exercise and question 1 and 2. Okay, we are already taking exercise 1.1. in that we are question 1 and 2 already seen. Now we are taking the question number 3. in that question number 3 देखेंगे. Question number 3, that is find the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay, find the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So how we find that? So as the same thing that we are already seen in the previous session, that is take both of the numbers at here first, 3/5 and 4/5. Clear? After that we need to find the how much rational numbers? 5. So you have to take always greater than the this number, that means how much you have to find. Okay, you have to always take greater number that you have to find. Okay, so greater number that is 6, 7, 8, 9, 10, anyone. आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो लेकिन 5 से ग्रेटर लेना है. क्यों? क्योंकि आपको 5 नंबर्स फाइंड करने हैं तो 5 से ऑलवेज ग्रेटर ही लेना है. फिर 6 लो, 7 लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, कोई भी लो चलेगा. ठीक है. सो हियर वी हैव टू टेक दी 6 टू दी बोथ साइड, multiply to the both side. Okay, why should we take directly multiply 6 to both side? मैंने डायरेक्टली क्यों किया? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम दिया गया था. ओके, हम और एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिए गए होंगे. ओके, इफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन एज इक्वल, then we have to take second example of that. ओके, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया गया होगा वो एज अ सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे. पहले ये कंप्लीट कर लेंगे. देन 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. क्लियर? तो 18 एंड 24 के बीच में आपको यहाँ पे 6 नंबर्स मिल गए. कौन से नंबर्स हैं? 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. ओके, एंड 24 तो ऑलरेडी है. देन दिस इज योर आंसर. Okay, this is your answer.
Clear? Then note down this one. Then we are moving on the again one of the example or question that are not in your textbook. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग दिए गए। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इससे पहले जो मैंने आपको दिए थे उसमें तो आपको डिनोमिनेटर था ही नहीं, उसमें तो आप डिनोमिनेटर एज अ 1 लेते ही थे। ओके, तो अभी हम ऐसा लेंगे कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अभी, फाइंड 7 rational numbers between 3/2 and 1/3। ओके, 3/2 एंड 1/3। तो दोनों में डिनोमिनेटर्स क्या है मेरे, डिफरेंट, अलग है, राइट। तो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम यहाँ पे अभी अलग टेक्निक यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए। कौन सी अलग टेक्निक है कि भाई पहले तो नंबर्स लिख लेते हैं। ओके, पहले तो नंबर्स लिख लो। अभी नंबर्स लिख लिए तो अभी क्या करना है कि भाई मुझे कितने चाहिए, 7 नंबर्स चाहिए, राइट। अभी 7 नंबर्स चाहिए, तो 7 में मल्टीप्लाई करूँगा ग्रेटर देन दी 7। कोई भी नंबर लूँ तो मल्टीप्लाई कर लूँ डायरेक्टली, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है ग्रेटर दी 7 नंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक दी सेम डिनोमिनेटर एट हियर। ओके, after that we are moving on the that step to multiply greater number to the 7 to the both side. Okay, so first of all how to take denominator as a same. Okay, कैसे लेंगे, so we have to take LCM of that. LCM of 2 and 3 is, LCM of 2, 3 that is 6, right? LCM of 2 and 3 that is 6, हमको पता है। अगर आपको LCM HCF नहीं आता हो तो प्लीज़ पहले वो सीख लेना। So here I have to take 6 in the denominator in both of the numbers, so we have to multiply 3 to the both side. So 2 3s are from the 6 and 3 3s are from 9. Here we have to multiply 2 at the both side. So 3 2s are forms already 6, then 2 1s are formed as a 2. Now अभी आप यहाँ पे देखो 9/6 एंड 2/6, तो 9/6 एंड 2/6 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 3 4 5 6 7 8। ओके, मुझे 6 नंबर्स ही आ रहे हैं, 7 नहीं आ रहे हैं, एक कम बच रहा है। सो नाउ यू हैव टू टेक मोर देन 7, that is 8 9 10 11, कोई भी नंबर ले लो and multiply it to the both side. I am taking 8 to multiply to the both side. Okay, clear? आपको यहाँ पे कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 7। तो ग्रेटर देन दी 7 हमको लेना है कोई भी नंबर, तो वो ग्रेटर देन दी 7 अभी किस स्टेप से लेंगे, दिस स्टेप से। ओके, कौन से स्टेप से लेंगे, इस स्टेप से। क्लियर? तो इस स्टेप से आपको ग्रेटर देन दी 7 नंबर कोई भी लेना है और वो मल्टीप्लाई करना है। हम जो थे पहले ग्रेटर देन दी कोई भी नंबर फाइंड करना था, तो ग्रेटर देन दैट नंबर हम कौन से स्टेप से ऑलवेज करते थे, पहले स्टेप से ही करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर जो थे वो क्या थे, सेम ऑलरेडी थे, राइट। मुझे डिनोमिनेटर क्या थे वहाँ पे, ऑलरेडी सेम थे, देन इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हमने ग्रेटर देन दी 7, ग्रेटर देन दी 7 कौन सा नंबर, 8, तो 8 मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, नहीं वो नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे डिफरेंट है। क्लियर? तो डिनोमिनेटर जो है पहले सेम करो, उसके बाद आप जो है 7 के ग्रेटर नंबर आप लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा,
9 8 जा 72 एंड 6 8 जा 48 एंड यहाँ पे 8 2 जा 16 अपॉन 6 8 जा 48। तो अभी 16 से लेके 72 तक आपको बहुत सारे नंबर्स मिल गए, उसमें से कोई भी 7 आप लिख सकते हो। ओके, आई राइट एनी 7 ऑफ द नंबर 8 हियर। ओके, दैट्स नॉट कंपल्सरी कि मैंने यहाँ पे जो 7 नंबर लिखे वही आप लिख सकते हो, आप कोई भी 7 लिख सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि 16 और 72 के बीच के नंबर होने चाहिए। ठीक है, 72 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए और 16 से स्मॉलर नहीं होने चाहिए। क्लियर? सो कौन से नंबर्स आएंगे आपके यहाँ पे? 18/48, 20/48, 22/48, 25/48, 29/48, 1 2 3 4 5, 35/48, 40/48। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 numbers। Clear? Understood? Then note down the answer first, then we are moving on the again some example. Done? Now क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको समझ में आ गया, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो कैसे करना है और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे करना है। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट दी ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट वन दैट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कहेंगे। दैट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वाई? रीज़न दो मुझे। ओके, रीज़न देना है मुझे, ट्रू हो या फॉल्स हो मुझे रीज़न देना है। क्या रीज़न? बिकॉज नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर विल स्टार्ट विथ 1। ओके, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0। सो all the number starting with 0 is already included in it। ओके, in it मतलब कि होल नंबर में। ओके, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज यस। समझ में आ गया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और होल नंबर्स जो है 0
1 2 3 4 5 6 वहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओके, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर जो है सारे वो यहाँ पे आ गए ना होल नंबर्स के अंदर ऑलरेडी, लेकिन होल नंबर में सिर्फ 0 एक एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आ गए ना। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट्स व्हाई एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, इसलिए सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कहेंगे। Second question, that is every integer is a whole number. Every integer is a whole number. सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर कहेंगे, तो दैट्स अ फॉल्स। क्यों? क्योंकि दिस इज ए फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव तो होते ही हैं और ज़ीरो भी होता है, वो तो हो गया होल नंबर्स, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो दैट्स वाई नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में होते ही नहीं है। ओके, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। जब इंटीजर में 0 तो होता ही है, नेचुरल भी होते हैं यानी कि पॉजिटिव भी होते हैं और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, सो दैट्स वाई नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर में होते ही नहीं है। सो दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दैट्स अ फॉल्स। सारे इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होते, ठीक है। सो आंसर इज फॉल्स एंड वी आर राइटिंग दी रीजन, दैट इज बिकॉज नेगेटिव नंबर्स is not included to whole number, ठीक है। नेगेटिव नंबर जो होता है वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं किए जाते, सो दैट्स व्हाई all integer is not a whole number. Clear? First of all, note down this both of the answer, then we are taking the third true false. Now third true false. थर्ड ट्रू फॉल्स कौन सा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर every rational number is a whole number. ओके, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर्स को हम होल नंबर्स कह सकते हैं, दैट इज अगेन फॉल्स। ओके, दैट इज अगेन फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है एंड जिसमें डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होता है, एंड रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, राइट, और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव तो होल नंबर्स में आते ही नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स, बिकॉज rational number also have negative
numbers as P upon Q form, राइट। रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव में P अपॉन Q फॉर्म बना सकते हैं। ओके, लाइक एग्जाम्पल -1/2, -3/4, तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं और नेगेटिव में भी है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव तो होल में आते ही नहीं है। क्लियर? सो दैट्स वाई। Note down this answer. Dear students, I hope you have to understood all these things at here question 3 and 4. Clear? So अभी एग्ज़ाम में होमवर्क में आपको पूरी एक्सरसाइज 1.1 करनी है। ओके, नाउ योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है आपको। ओके, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से लिख के देता हूँ। आज का होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 1.1 फुल करनी है पूरी। ओके, एंड साथ में मैं यहाँ पे कुछ सम्स दे रहा हूँ जो आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे और उसके बीच के रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो वैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, जो आज हमने ऑलरेडी देखे थे इस टाइप के क्वेश्चंस। सो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3. Find 4 rational numbers between 2/3 between 2/3 and 3/5। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस भी आपको साथ में करने हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी पूरी करनी है। क्लियर? सो एट हियर वी आर कंप्लीटिंग द टुडेज लेक्चर एट हियर। देन आई होप ऑल ऑफ यू have to clear all these things at here. Okay, so till then, goodbye and stay blessed.